Hello students, this is Hardik sir, and today we will be starting our first lesson of geography from standard 8. The title of the book is Resource and Development and the lesson title is Resources. So first from the title we must know that what is a resource. Resource means anything that fulfills the need of human and that makes our lives comfortable. So we use resources to modify our environment, and ultimately with that help we can make our lives comfortable. So now let us have something about resources. In this part we are going to understand what is a resource and why any object become resource for us. So in the beginning you will find that Mona and Raju, there are two children in the story. They were helping her amma to clean their house. So one by one, when they saw number of things, they found number of things like, as you can see, clothes, utensils, food grains, combs, this bottle of honey, books, यानी नंबर ऑफ थिंग्स जब उन्होंने देखा तो बाय द टाइम मोना ने कहा लुक एट ऑल दिस थिंग्स, तो मोना बताती है इन सभी चीज़ों को देखने के लिए. ओके, सो वो कहती है कि दे दैट इज़ वाई दे आर ऑल इम्पॉर्टेंट बिकॉज ईच वन ऑफ दैट हैज़ अ यूज़. इन सब का कोई ना कोई यूज़ है, इसीलिए ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट है इस तो हमारे वो रिसोर्स है. तो वो मम्मा कहती है, उनकी अम्मा कहती है कि दीज आर रिसोर्सेज. बट नाउ द क्वेश्चन फॉर राजू इट इज़ दैट व्हाट इज़ अ रिसोर्स. तो इफ़ यू आर ऑल्सो आस्क्ड सच अ क्वेश्चन इन एग्जाम देन यू ऑल्सो शुड राइट एनीथिंग दैट can be used to satisfy need is a resource. So you will find the definition here. What is a resource? Anything that can be used to satisfy a need. तो हमारी ज़रूरत को पूरी करने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो सब की सब चीज़ें हमारे लिए रिसोर्स है. सो ये अम्मा ने आंसर दिया और आप भी ये आंसर सेम लिख सकते हैं. 1 मार्क के लिए डेफिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ज़रा ध्यान से सुने और लिखे, लर्न करें. सो लुक अराउंड यू and observe, you will be able to identify many types of resources. So she continues. उसके बाद भी कहती है कि हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिसोर्स है. जैसे एग्जांपल दिया है द वाटर. सो जो पानी हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ ऑल्सो अ रिसोर्स बिकॉज व्हेन वी आर थर्स्टी एंड इफ़ वी हैव वाटर देन डेफिनेटली वी कैन सेटिस्फाई आवर नीड. The electricity which we use in our house, that is also a resource. The rickshaw you see or you use, जिसे आप स्कूल आते हैं या स्कूल से घर जाते हैं, that are all resources. The textbook you use to study are also resources. So there are number of things which we are surrounded by, they are all resources. Even she adds one more example that your father has prepared a tasty snack. जो उनके लिए कुछ स्नैक पकाया गया है उसके अंदर भी he has used some fresh vegetables and those fresh vegetables are also a resource. So there are number of things which we find that around us in our home also you will find that there are number of things which are resources. So as from above paragraph you can conclude that water, electricity, rickshaw, vegetable, textbook, they have something in common. So what is the common? That they have all been used by you. जिनका आप सभी इस्तेमाल करते हैं, that means they have utility. इन सब का कोई ना कोई यूज़ है. यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज़ व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स. तो यूटिलिटी यानी उसका यूज़ है जो किसी भी पदार्थ को एक रिसोर्स बनाता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को रिसोर्स बनाने का काम ये करता है. सो हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स. अब राजू के पास एक नया क्वेश्चन आ चुका है. तो अम्मा टोल्ड चिल्ड्रन दैट थिंग्स बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू. So if you have a value then you are also a resource. So everything that has a value, that is a resource. Its use or utility gives it a value. तो उसका यूज़ और यूटिलिटी यानी उसका उपयोग ही उसे वैल्यू देता है, उसकी कीमत बनाता है. सो ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू. जितने हमारे रिसोर्सेज है वो सभी फ्री नहीं है, उनका कोई ना कोई वैल्यू है. सो वैल्यू का मतलब क्या होता है अब हम आगे देख लेते हैं थोड़ा. सो वैल्यू मीन्स वर्थ, मीन्स सब कुछ कीमत हमें उसकी चुकानी पड़ती है. सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू बट सम डू नॉट. और कुछ कुछ रिसोर्स की ऐसी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है. जैसा यहाँ एग्जांपल दिया है, मेटल्स मे हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप मे नॉट. एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप है उसका शायद इतना कोई वैल्यू नहीं होगा. यानी अगर आप वो ज़मीन खरीदना बेचना चाहते हैं तो ऑब्वियसली देयर इज़ अ वैल्यू. बट सिर्फ ऐसा देख रहे हैं कोई नज़ारा बढ़िया सा आप आपके घर में से, देन इट हैज़ नो वैल्यू, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट.
but both are important and satisfy human needs, and ultimately because of their fulfilling the needs of human, they become resources. And as they fulfill the needs of human, that means they have some sort of value. So that value may be economic and even may not be economic, यानी कुछ कुछ चीज़ों की कीमत होती है इकोनॉमिकली, भले ही शायद कुछ की ना हो, बट स्टिल दे आर इम्पॉर्टेंट. वी हैव वन मोर एग्जाम्पल, सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल, यानी आज शायद उसका इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, बट विद द टाइम, ओवर अ पैसेज ऑफ टाइम, इट मे बी पॉसिबल कि कल को शायद उसका इकोनॉमिक वैल्यू हो जाए. जैसे अगर आप देखें एग्जाम्पल, योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज़, यानी जो घरेलू नुस्खे उपचार जो आपकी दादी माँ करती है, शायद उसका आज कमर्शियल कोई वैल्यू नहीं है, उससे कोई पैसा नहीं बन सकता है, बट इफ़ दे आर पेटेंटेड, अगर उनको पेटेंट करवाया जाए, आप देख सकते हैं वो बाजू में मीनिंग भी दिया है, इफ़ दे आर पेटेंटेड एंड सोल्ड बाय मेडिकल फर्म टुमारो, अगर कोई मेडिकल फर्म कल उनको बेचती है, देन डेफिनेटली दे कुड बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूबल, और वो कल को शायद इकोनॉमिकली भी वैल्यूबल हो सकते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय दी वर्ड पेटेंट? तो यहाँ दिया है कि इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एन आइडिया और इन्वेंशन, यानी जो घरेलू नुस्खा, जो होम रेमेडीज़, योर ग्रैंड मदर हैज़ इन्वेंटेड समथिंग, and if she has an exclusive right over that, means if she has got it patented, then definitely before being used by others it has to be paid, यानी अपनी आपकी ग्रैंडमा को वो पे करना पड़ेगा. ओके, सो पेटेंट आप जैसे समझ चुके हैं दैट इफ़ यू हैव एन एक्सक्लूसिव राइट, so before selling the same remedies into market, a company has to pay for that to your grandmom also. So this is something, your exclusive right is over there on that particular product. Here we will find some two important factors कि जो किसी न किसी सब्सटेंस को, किसी भी पदार्थ को रिसोर्स बनाने के लिए काफ़ी महत्व रखता है. So as you can find, time and technology, so which are two important factors that can change substance into resource. तो कौन से ऐसे दो फैक्टर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन. सो देर आर टू फैक्टर्स, टाइम एंड टेक्नोलॉजी, दैट कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज, जो किसी भी पदार्थ को रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल. तो जैसी ज़रूरत है उस तरह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एनीथिंग कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ रिसोर्स. हियर फॉर टेक्नोलॉजी यू विल फाइंड इन ग्लॉसरी that technology, it is the application of latest knowledge, हमारा लेटेस्ट नॉलेज और स्किल, उससे जो हम कुछ नई चीज़ें बनाए या कुछ चीज़ों को अच्छे से करें बेहतर बदलाव के साथ, then that is something known as technology. So people themselves are the most important resource. तो इंसान भी रिसोर्स है, क्योंकि ये हमारे ही आइडियाज़, हमारे ही नॉलेज, हमारे ही इन्वेंशन और डिस्कवरीज है that ultimately leads to the creation of more resources, because only human can modify the things. There are all the things available on the earth, we use the things to make our lives comfortable. We have cut the trees and from those wood we have made furniture. None other and no other animal has done so, but we have used this. So this is how we use the resources, this is how we use the material around us for making our lives more comfortable. So each discovery or invention leads to many others, यानी from one object we find another, यानी from one idea we come to another idea. And this is how what you can see right now on your mobile screen, that mobile also is not since the beginning of the humankind. Humans have invented it. As you know, Graham Bell invented telephone, and he also wouldn't have imagined that this would be the situation, or this would be the ultimate result, that on screen you will find everything. So there are number of discoveries after that, number of inventions have taken place, and ultimately you can find the smartphones in your hand. So each discovery and or invention has led to one another, and this discovery, जैसे example is also given that discovery of fire led to the practice of cooking. तो इंसान ये कुकिंग करना भी सीख चुका. And other processes, while the invention of the wheel ultimately resulted in development of newer modes of transport. So after the invention of wheel, नए तरीके ट्रांसपोर्ट के और आते गए. So newer modes of transport were introduced or invented because of the invention of wheel. In the absence of wheel, this wouldn't have taken place. The technology to create hydroelectricity
हैज़ टर्न्ड एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। सो जो फास्ट फ्लोइंग वाटर है उससे टरबाइन घुमा के इलेक्ट्रिसिटी पैदा किया जा सकता है, और उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होकर शायद हमारे घर का बल्ब भी जलता है, हमारे घर का फ़ैन भी जलता है। इफ़ आई टेल यू कि आपके घर का बल्ब या फ़ैन या एसी शायद पानी से चल रहा है, देन यू विल बी सरप्राइज्ड। बट वो पानी से डायरेक्ट नहीं चल रहा है, पानी से टरबाइन घुमा के इलेक्ट्रिसिटी पैदा किया गया है, एंड आफ्टर दैट वो इलेक्ट्रिसिटी आपके घर तक सप्लाई हो रहा है, जिससे आप ये सब चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। सो दैट मीन्स फास्ट फ्लोइंग वाटर इज़ ऑल्सो अ रिसोर्स। पर उसे हमने क्या किया, उससे हमने इलेक्ट्रिसिटी पैदा की, और वो इलेक्ट्रिसिटी से हमने हमारे इलेक्ट्रिक जो भी इक्विपमेंट्स है उन्हें यूज़ किया। सो फास्ट फ्लोइंग वाटर ऑल्सो बिकम a resource. So we will be continuing from types of resources with the next part. Thank you students, keep learning, all the best.